Yes, ma'am. Yes. Okay. So the scope part was, I mean, in between I have left this part, scope. I shifted to directly the factors on which growth of merchant banking depends. Okay, you can listen to the recording of lecture that was taken on 12th September. ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी. कौन सी वाली? Merchant banking versus commercial banks, importance, objectives of merchant banking, characteristics, and types of merchant banking organization. All these things you will find together with the factors on which growth of merchant banking depends. Okay? In between, this topic was left with because we did not have that much time. इसीलिए हमने ये टॉपिक बीच में छोड़ दिया था. ठीक है, वो अभी कर लेते हैं. बेसिकली आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा. ठीक है ना, मर्चेंट बैंकिंग का जो ये सेकंड चैप्टर है एफएसएम का, ये पूरा हो जाएगा. विद दिस आई एम अपलोडिंग माय रिकॉर्डिंग्स, सो प्लीज कीप रिवाइजिंग दोस चैप्टर्स जो भी हम कर चुके हैं पहले वाला या ये मर्चेंट बैंकिंग. इसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स करेंगे. दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर है. I mean, we will start with unit 2. With this, our unit number 1 will be over. Okay. Now, scope for growth of merchant banking in India. Now, there is so much growth of merchant banking sector in India. As planning and industrial policy of country envisaged, the setting of new industries and technology. देखो, जब से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई गई हैं, 1991 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. उसके बाद तो देर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर सेटिंग अप विथ न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग अप विथ न्यू कंपनीज, है ना. तो उन बहुत सारा ऐसा स्कोप है जो मर्चेंट बैंकिंग के सेक्टर में आया है. There is well proven link between economic growth and financial technology. Yes, there is a link between, because if there is a economic growth, if there is an technology, there will be economic growth. If there are new industries coming in with new technologies, with innovative products, there will be economic growth, sustainable economic growth, right? And that requires financial skills, marketing skills, okay, how to run the companies, management skills, okay, and where to invest, where not to invest, how to lend money, how much to lend money, what to invest in, which project to choose. These are the qualities that you need to run your business, okay. And this merchant banking will help you set up these qualities, these skills. Therefore, the scope of merchant banking is very, very wide, very wide. That has been divided into these parts. See, growth of primary sector, where all merchant banking, in what all areas merchant banking can be applied. That is known as scope. No, scope means in every type of, in what type of areas you can apply merchant banking as a business or profession. Where can you apply this sector? Okay, where is this field useful? मर्चेंट बैंकिंग की जो फील्ड है वो कहाँ कहाँ कौन सी एरिया में यूजफुल होती है. ठीक है ना, वो बताया है इन्होंने. तो इन्होंने ये पांच जो चीजें दी हुई है ना, ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर किसी प्राइमरी मार्केट में आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो आपको मर्चेंट बैंकर हेल्प करेगा आपके शेयर्स इशू करने में, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने में. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मर्चेंट बैंकर हेल्प करेगा. प्राइमरी मार्केट आपको पता है क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट जहाँ पे आपने अपने न्यू शेयर्स, फर्स्ट टाइम जब शेयर्स इशू होते हैं, आईपीओ जिसे कहते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट. एंड लेटर ऑन जब भी फर्दर इशू होंगे शेयर्स, इट विल बी नोन एज सेकेंडरी मार्केट. ठीक है ना. तो जो प्राइमरी मार्केट में अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, प्राइमरी मार्केट की ग्रोथ को भी मर्चेंट बैंकर देखता है. मतलब मर्चेंट बैंकर की जो फील्ड है वो यहाँ भी काम आएगी. एंट्री जो सर्विसेज हैं वो यहाँ भी काम आएंगी. एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स. अभी देखो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है. अब मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ली, किसी कंपनी ने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ली, और वो कंपनी आउटसाइड कंपनी है, आउटसाइड इंडिया. तो कैपिटल मार्केट में भी ग्रोथ
के चांसेस हैं अगर आप मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो। मतलब देयर इज अ ग्रेट डिमांड ऑफ मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इन दिस सेक्टर ऑल्सो. एंट्री ऑफ foreign investors, maybe through joint ventures, maybe through mergers and acquisitions, maybe through foreign direct investment, है ना. Next is changing policy of financial institution. Now suppose you want to change the schemes, the systems, the structures that has been made in the financial institutions that were very old, now that we cannot apply to a current situation. मे बी दोज आर आउटडेटेड सिस्टम्स. जैसे एग्जाम्पल ले लो, बैंक में जाके लाइन में खड़े होकर हम लोग को कैश विदड्रॉ करनी है, तो वो आउटडेटेड सिस्टम है. येस, इट इज एप्लीकेबल टुडे ऑल्सो, but most of people prefer doing mobile banking, internet banking through RTGS, NEFT, etc. So maybe because you want to change the policies, it bring out innovation and innovative products and services in your system. So merchant banker will help you in what type of services you should invest your money, what type of product, innovative product you should bring out. Okay, they will do research for you, and they will guide you to as to what type of product and services should be brought out in the market. आया समझ में? उसे कहते हैं चेंजिंग पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. दैट मर्चेंट बैंकर विल हेल्प यू. सो इन दिस फील्ड मर्चेंट बैंकर आल्सो हैज अ स्कोप. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ डेट मार्केट्स. Now debt market, if there is a debt market, suppose your bank has debt instruments. That means एग्जाम्पल ले लो, सपोज आपकी बैंक ने किसी को लोन दिया है और उसके अगेंस्ट में मॉर्गेज लिया है, घर के पेपर्स, कार के पेपर्स. ठीक है, तो आपके पास जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ये जो घर के पेपर्स, कार के पेपर्स, ये जो पेपर्स हैं, ये आपके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बट डेट इंस्ट्रूमेंट. डेट मीन्स आपने लोन दिया है, उसके अगेंस्ट में जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उसके अगेंस्ट में जो आपके पास गिरवी रखे हुए पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या इम्पोर्टेंट किसी की प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, है ना. तो उसको कैसे डील करना है, मतलब उसमें से आप कितना मनी, कैसे मनी फेच कर सकते हैं. ओके, ठीक है ना. उसे कहते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है ना. हलीमा इज लाफिंग, मैंने बोला ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. हलीमा को गिटार याद आ गया, है ना. चलो, अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं. कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. अब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में भी मर्चेंट बैंकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कैसे कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करने का, डेट को कम करने का, इक्विटी बढ़ाने का, या इक्विटी कितना कम करना है और डेट कितना बढ़ा सकते हैं. दैट इज नोन एज कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग. नो, मर्जर, एक्विजिशन, या कौन सा ब्रांच बंद करना है, कौन सा ब्रांच ओपन करना है, कौन सी सिटी में ब्रांच ओपन कर सकते हैं, कहाँ ज्यादा स्कोप है आपके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऐसी कौन सी एरिया है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना इजी हो जाएगा क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल बिल्कुल पास पास अवेलेबल है ना. ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में. ठीक है ना. चलो आगे बढ़े. ये 5 एरियाज थी जहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा. मतलब इन 5 फील्ड में मर्चेंट बैंकिंग की जो सर्विसेज है ना, वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं. ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी में ही नहीं यूज होती है, और भी कुछ है विच इज एक्सटेंडेड टू. द स्कोप कुड बी एक्सटेंडेड टू. अब कंपनी को एडवाइस भी कर सकते हो आप कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाइए. ठीक है, सबसे पहली बार जब भी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करती है ना, तब आप उनको एडवाइस कर सकते हो. एडवाइस के लिए फीस लेती है, फ्री में नहीं काम करेगी मर्चेंट बैंक. ठीक है. हाँ, उसके बाद आपका आता है एडवाइजिंग द कंपनी ऑन इंस्ट्रूमेंट टू बी ऑफर टू द पब्लिक. पब्लिक को कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऑफर करना चाहिए? कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स. कौन सा इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, डिबेंचर्स, कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मुझे पब्लिक को ऑफर करना चाहिए, किस टाइम पे, मार्केट में कौन से प्राइस पे, वो सारी एडवाइस आपको मर्चेंट बैंकर देता है.
ठीक है. प्राइसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. शिवानी, आई विल कम टू योर पॉइंट एट द लास्ट. ओके, या फिर आप बाद में मुझसे पूछ लेना. प्राइसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. प्राइसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब यही सेम चीज, कौन से शेयर को, कौन से डिबेंचर को, कौन से बॉन्ड को कितने प्राइस पे कब इशू करना है मार्केट में. ठीक है, उस पर एडवाइस देना. एडवाइजिंग द कंपनी ऑन लीगल मैटर्स. आपके पास, आपको ना सेबी से कुछ रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपका स्टॉक लिस्टेड करवाना है सेबी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ या फिर एनएससी के साथ, है ना. तो ये जो लीगल मैटर्स है ना, उनके साथ भी जो भी बातचीत है, जो रजिस्ट्रेशन करानी है, जो डॉक्यूमेंट्स लेन देन करने हैं, वो सारा आपके लिए कौन करेगा? हु विल डू इट फॉर यू? Merchant banker. So he will give you advices. Such like papers will be needed, such like documents will be needed. You need to submit all the documents by this particular date to SEBI, to Registrar of Companies, ROC, है ना, or to stock exchanges, example BSE, NSE, etc. So these are the legal matters that he will handle out for you. He will advise you how to handle them. Exchange and other regulatory authorities. Exchanges authorities मतलब stock exchange. एक्चुअली ये ना, ये मिक्स हो गया, सॉरी, अलग अलग हो गया. इट इज लाइक दिस: एडवाइजिंग द कंपनी ऑन लीगल और रेगुलेटरी मैटर्स एंड इंटरेक्शन विद सेबी, आरओसी. आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज. ये ऐसा है. हाँ, ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट एक्चुअली एक ही है, सॉरी. It is stock exchanges and other regulatory authorities. That means अगर आपको इंटरेक्शन करना है सेबी के साथ, आरओसी के साथ, स्टॉक एक्सचेंज या अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को कौन देखता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन का एक्ट बना हुआ है ना. आईआरडीए, आईआरडीए से एक, इट इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंश्योरेंस कंपनीज. तो ये एक पॉइंट है. ओके. Next is assisting the company in, assisting means helping the company in marketing the issue. मतलब आपके शेयर्स को कैसे बेचना है, उसको प्रमोट कैसे करना है आपकी कंपनी के शेयर्स को, और बेचना कैसे है, कितने प्राइस पे, उसकी मार्केटिंग भी कौन करके देगा आपको? मर्चेंट बैंकर. I hope my voice is audible because I have a pop-up on my screen that my internet connection is unstable. Since morning it was running like anything, but now it shows this way. Is my voice audible to all? आवाज ठीक से आ रही है सबको? Yes, somebody please write. आवाज आ रहा है बराबर से? हेलो. Yes, am I audible now? Yes. Is it clear? Yes. Okay. I hope the screen is also visible properly. Yes. Okay. Okay. So, assisting the company in marketing the issue. I've explained this. Uh, this means while issuing your shares, debentures, bonds, or any type of security of your company, the marketing department can also be handled by merchant banker. I mean, he can advise you, he can help you out in marketing, in promoting your issue. Okay. In channelizing the financial surplus of general public. मतलब आपका जो फाइनेंशियल सरप्लस है ना, उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, चैनलाइज करने में, डिवाइड करने में, कि मुझे ये पैसा, इतना अमाउंट, इतना फंड यहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे मेरा जो सरप्लस है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फंड्स हैं, वो प्रोडक्टिव हो. समझ में आ रहा है? मतलब इकोनॉमी में आगे काम भी आए और मेरा भी फंड बढ़े. चैनलाइज ऐसे करना है, मतलब आपके फंड्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसी जगह पे यूज और अप्लाई करना है, उसको कहते हैं चैनलाइज करना. ऐसी जगह पे अप्लाई करना है जिसमें आपको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट मिले. ठीक है, प्रोडक्टिव रिटर्न्स मिले.
प्रोडक्टिव रिटर्न्स मीन्स आपके लिए भी वो बेनिफिशियल होना चाहिए और वो इकोनॉमी के लिए भी प्रोडक्टिव हो, अनप्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए. समथिंग विच ब्रिंग्स आउट वेरी यूजफुल इज नोन एज प्रोडक्टिव. ठीक है. नेक्स्ट इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंटरमीडियरीज. बहुत सारे इंटरमीडियरीज के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है. इशू करना शेयर्स जैसे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से डील करना, बैंकर्स से डील करना, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से डील करना, प्रिंटर्स, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स से कितना लेन देन करना है, ब्रोकर्स कितने हैं कंपनी के और वो कितने शेयर्स कहाँ पे कितने कौन से मार्केट में कितने प्राइस पे इशू करते हैं, उनसे डील करना. Okay, so he can deal as an underwriter, he can deal as a broker, he can deal as a advertising agency. Okay, he can deal as a banker to you, मतलब आपको लोन लेकर दे सकता है. So बहुत सारी एक्टिविटीज को एक साथ कोऑर्डिनेट करके आपकी कंपनी को स्मूथली चलाने में हेल्प कर सकता है. Okay, to ensure the compliance with rules and regulations governing the security market. Securities market को जो rules and regulations लगते हैं ना, जो आपको नहीं पता होंगे कुछ rules and regulations, लेकिन merchant banker को knowledge होता है, तो वो he ensures that every kind of rules and every kind of rule and regulations which are made as per the security markets are compliant, are to be followed properly, are to be adhered properly. समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं compliance with rules and regulations. That means you have to follow the rules and regulations which are stated as per the governing laws of security markets. Okay, that was scope that we had covered. Scope of the merchant banking. Now problems. What are the problems that has been faced by merchant bankers? Restriction of merchant banking activities. See, you cannot be involved in every type of activity. There are certain activities that SEBI has given you the guidelines for. Okay, that you need to follow. SEBI looks after merchant banking. Very important, huh? I have covered it in the last lecture. You can go through the lecture recording, and you can, revise that particular lecture if you don't remember. SEBI is the regulatory authority for merchant bankers. So SEBI guidelines have authorized merchant bankers to undertake issue related activities. Not every activity you can be involved in. You cannot run the whole company. No. In certain activities you can be involved in. Okay. Or think of separating these activities from present one and float new subsidiaries and enlarge the scope of its activities. That means indirectly, इनका मतलब क्या है? You cannot serve the company directly, but you can serve them indirectly. ठीक है. बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे होती हैं जब आप उनको इनडायरेक्टली सर्व कर सकते हैं, एडवाइसेस देकर, उनको गाइड करके. ओके, बट आप उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते. बैंकर को नहीं जाके बोल सकते कि मैं एज अ मर्चेंट बैंकर एज अ गारंटर हूँ और आप इनको सर्विसेज दीजिए. नहीं. जो सेबी की गाइडलाइंस के अंदर में जितनी सर्विसेज हैं उतनी ही आप वैसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं ना, जैसे इशू रिलेटेड मैनेजमेंट. तो उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो आप दे सकते हैं, उसके दायरे के बाहर नहीं जा सकते एज अ मर्चेंट बैंकर. और हमने पढ़ा है मर्चेंट बैंकर कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते. ओके. मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹1 crore. सी द कंपनी who has minimum net worth of ₹1 crore can be authorized as a merchant banker. Not less than that. That is a limitation. That is a problem. So a particular bank, if they don't have a minimum capital of ₹1 crore, capital नहीं, net worth. So minimum net worth of 1 crore. Net worth means capital का value. ठीक है. मिनिमम जो आपकी कैपिटल है ना उसकी वैल्यू, अगर नेटवर्थ एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपका 1 crore से कम है ना, तो आप मर्चेंट बैंकिंग का जो रोल है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. मर्चेंट बैंकर करके आप अपने आप को नहीं दिखा पाएंगे. ठीक है. उसके लिए आपको मिनिमम 1 crore का नेटवर्थ तो चाहिए ही चाहिए. आपकी कंपनी का जो कैपिटल का वैल्यू है ना उसे कहते हैं नेटवर्थ एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है. आफ्टर ऑल इशू ऑफ शेयर्स, बेचना, खरीदना, ट्रेडिंग करना, आपके प्रोडक्ट्स कितने बिके, आपकी असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है,
प्रॉफिट्स कितने हैं, लॉस कितने हैं, वो सब देखकर, एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम्स कितने हैं, वो सब देखकर है ना नेटवर्थ डिसाइड होता है, ठीक है, रिजर्व्स कितने हैं वैसे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ इशूइंग कंपनीज। जो इशूइंग कंपनीज हैं, नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ इशूइंग कंपनीज इन टाइमली अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी इज अनदर प्रॉब्लम। देखो, फेस्ड बाय मर्चेंट बैंकर्स, सी मर्चेंट बैंकर्स क्या करते हैं, आपके शेयर्स को इशू करने में हेल्प करते हैं, लेकिन अगर शेयर्स इशू हो गए लेकिन एप्लीकेशन मनी आ गई और अलॉटमेंट मनी पेंडिंग है, फर्स्ट कॉल मनी पेंडिंग है, तो जब अमाउंट कलेक्ट ही नहीं हुआ ना, तब मर्चेंट बैंकर को प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का काम है अमाउंट कलेक्ट करना, ठीक है, कंपनी के अकाउंट में सारा अमाउंट आता है ना। सो मर्चेंट बैंकर हैज टू सी जो टाइम से जितना फंड कलेक्ट होना है वो हुआ कि नहीं, या फिर जिसने शेयर्स को नहीं खरीदा, या फिर क्या कहते हैं, वो प्रोपोर्शनेट रेशियो होता है ना, जब हमारे पास शेयर्स थोड़े होते हैं और खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तब हमको ना प्रो रेटा रेशियो डिसाइड करना पड़ता है कि अगर आपने 3 शेयर्स खरीदने आए हो तो हम आपको 2 शेयर्स देंगे, कोई अगर 6 शेयर्स खरीदने आए तो उन्हें हम 4 शेयर्स देंगे। ऐसा प्रो रेटा रेशियो डिसाइड होता है। तो प्रो रेटा के टाइम पे क्या होता है, उन्होंने एप्लीकेशन मनी तो 6 शेयर्स का भर दिया, लेकिन आई मीन हमने उनको कितने शेयर्स दिए, 4। उन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, 6। एप्लीकेशन मनी में पैसा कितने के हिसाब से भरा, फंड्स कितने आए हैं, 6 शेयर्स के हिसाब से, बट वी नीड टू गिव देम ओनली 4 शेयर्स एज पर प्रो रेटा अलॉटमेंट बेसिस। Therefore, there is a surplus money which is there in our account. We need to refund it to them. 2 शेयर्स का अमाउंट रिफंड करना है या फिर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट अलॉटमेंट मीन्स नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो तब थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है, कॉर्पोरेशन नहीं हो पाता है, मतलब आपकी और मेरी कंपनी के साथ कॉर्पोरेशन नहीं बैठ पाता है, तब ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि कितना मनी रिफंड करना है और कितने लोग हैं जिनको हमने प्रो रेटा में डिसाइड किया था देने के लिए शेयर्स को। Are you getting my example? So merchant banker and your company will be in conflict. A problem will arose there कि कितना कैसे अलॉटमेंट करेंगे, अब कैसे प्रोरेटा हुआ, कितना मनी उनको रिटर्न करना है, तब थोड़ी ये प्रॉब्लम है ना मर्चेंट बैंकर्स को फेस करनी पड़ती है। मतलब उनको ना इशुइंग कंपनी से कॉपरेशन नहीं मिलता है, वो लिखा हुआ, मतलब वो इतना सपोर्ट नहीं मिलता है उनका। ओके, दे विल हैव टू हैंडल इट। आई बात समझ में? हाँ, उसको कहते हैं नॉन कॉर्पोरेशन। मतलब अभी मैं आपको किसी चीज के लिए सपोर्ट नहीं करूंगी तो आप बोलोगे मैम इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी, बस वही चीज है। इशूइंग कंपनी मर्चेंट बैंकर को कोऑपरेट नहीं करती है जब ये प्रॉब्लम आते हैं। प्रोरेटा अलॉटमेंट वाला, प्रोरेटा अलॉटमेंट मतलब प्रोरेटा मतलब 6 के बजाय 4 शेयर्स देंगे, लेकिन अमाउंट तो उन्होंने 6 का भर दिया है ना एप्लीकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन के टाइम पे ही शेयर्स का पैसा भरा जाता है, पूरा नहीं, इंस्टॉलमेंट का। तो एप्लीकेशन मनी जो उन्होंने दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है अलॉटमेंट मनी। तो एप्लीकेशन के टाइम पे तो उन्होंने 6 शेयर्स का दे दिया था ना, तो आपको तो उनको रिफंड करना पड़ेगा ना एक्सेस मनी जो आपने कलेक्ट कर दिया था। तब ये प्रॉब्लम आते हैं, कंपनी और मर्चेंट बैंकर का कोऑपरेशन नहीं बैठता है एक दूसरे का, ठीक है ना। आगे ये कंटिन्यू है अभी, प्रॉब्लम्स ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। तो मर्चेंट बैंकिंग कमीशन, देखो उनकी मैक्सिमम कमीशन है ना सिर्फ 0.5% होती है, ठीक है। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हो, किसी प्रोजेक्ट में एडवाइस कर रहे हो या प्रोजेक्ट अप्रेजल में हो, तो उनको फीस मिलती है उसकी। या लीड मैनेजर हो, किसी को लीड कर रहे हो, किसी कंपनी को गाइड कर रहे हो, तो उनकी क्या कहते हैं उसे, देखो कितनी छोटी सी कमीशन है, दिख रहा है आपको, 0.5% अप टू 25 करोड़। अगर आप लीड मैनेजर हो किसी कंपनी के 25 करोड़ की जिसकी वैल्यू है कंपनी की, तो आपको सिर्फ 0.5% का कमीशन मिलेगा। और अगर किसी का 25 करोड़ से ज्यादा है कैपिटल, तो आपको 0.2% और मोर। समझ में आ रहा है? कमीशन बताया, ये कमीशन, आप इतना कमीशन अर्न कर सकते हो। या फिर अगर आप किसी को शेयर्स बेचने में हेल्प करते हो, शेयर्स इशू करने में, तो अंडर राइटिंग फीस मिलती है आपको, जिसे कहते हैं अंडर राइटर्स कमीशन। ब्रोकर, अगर आप किसी के कंपनी के लिए आप ब्रोकर बन रहे हो, मतलब
स्टॉक एक्सचेंज में डील करवा के दे रहे हो या फिर उनके शेयर्स खरीदना बेचने का काम आप देख रहे हैं, तो उसे कहते हैं ब्रोकर। तो ब्रोकर की कमीशन सिर्फ 1.5% है। अदर एक्सपेंसेस, ये देखो उनके अदर एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, फिर एडवर्टाइजिंग करना, प्रिंटिंग करना, रजिस्ट्रार एक्सपेंसेस, मतलब आपकी कंपनी को एज अ मर्चेंट बैंकर आपको रजिस्ट्रार भी तो, रजिस्ट्रेशन भी तो करवानी है, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा. But in spite of all these problems which are popping up again and again in recent times, merchant banking in India has a vast scope. Despite of these all problems, merchant banking has a vast scope to develop. समझ में आ रहा है? Not in India, not just in India, but in foreign countries as well. ठीक है, आगे बढ़ें. क्वालिटीज. ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू करें? आई थिंक 3 minutes आर देयर. सो देखो, एक तो मैं आपको ये करवा देती हूँ, ये स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे. 5 minutes के बाद हम लेक्चर ज्वाइन करेंगे. ओके, ये खत्म हो जाएगा ना लेक्चर, फिर हम 5 minutes की ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे. एंड उसके बाद हम ये क्वालिटीज की जो पॉइंट्स है ना, ये हम लोग करने वाले हैं. टोटल 6 पॉइंट्स आते हैं. उसके बाद है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी 7 पॉइंट्स हैं, एंड फिर आपका चैप्टर हो जाएगा. ठीक है ना, आज हमारा चैप्टर ये पूरा हो जाएगा. सी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर आपको कंटिन्यू करना है तो. आपको सबको चलेगा कंटिन्यू? सबको चलेगा कंटिन्यू यस, करके? चलेगा. ठीक है, ओके. तो एक काम करेंगे, फिर से मीटिंग ज्वाइन करेंगे. ओके, 2 minutes के बाद मीटिंग फिर से ज्वाइन करेंगे. मीनवाइल लेट अस कंटिन्यू. क्वालिटीज ऑफ मर्चेंट बैंकर. ओके. For a merchant banker, there should be certain qualities. To become a merchant banker, you need to abide these qualities. If you have those qualities, only then you are eligible to become a merchant banker. What are the qualities that are listed below? Ability to analyze. That means you should have ability to understand. You should have that ability to analyze, to understand, to determine what the problem is. Because until you understand what the problem is, how will you be able to solve it? So first you need to analyze. You have that ability inside you that yes, I can analyze the problem, I can determine the problem. ओके, तो पहले, सबसे पहले आपको एनालाइजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. ठीक है ना, समझना चीजों को सही तरीके से, सही मायने में उसको डिटरमाइन करना. अबंडेंट नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारा, हर फील्ड से रिलेटेड. बैंक्स में कितने टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, कैसे कैसे लोन्स मिलते हैं, कौन से इंटरेस्ट पे कौन सा लोन मिल रहा है, कौन सी बैंक सबसे सस्ते में लोन देगी. ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना सही है. अबंडेंट नॉलेज चाहिए आपको, बहुत सारा. एबिलिटी टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप. दो कंपनीज के बीच में कैसे रिलेशनशिप बनाना है. ठीक है, अगर मर्जर है, एक्विजिशन है, या फिर चलो मर्जर एक्विजिशन नहीं भी है, मुझे बैंक से लोन लेना है, एक कंपनी को लोन लेकर देना है, तो मुझे पता होना चाहिए ना वो कंपनी और बैंक आपस में कैसे रिलेशनशिप सेटल करें, सो दैट द लोन पासिस ऑन स्मूथली. है ना. इनोवेटिव अप्रोच. हर एक आइडिया जो भी आप अप्लाई करोगे वो इनोवेटिव होना चाहिए. ओके, जो भी आप कंपनी को एडवाइस कर रहे हो, वो पुरानी एडवाइस नहीं करनी है, थोड़ी ऐसी एडवाइसेस देनी है जो इनोवेटिव हो, तब तो वो काम करेंगी. इंटीग्रिटी. दैट मीन्स यू हैव टू follow the virtue of integrity. Not being so harsh, not being so kind. समझ में आ रहा है? इंटीग्रिटी मतलब आपको दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी है. It shows me less than 1 minute. We will join in the next lecture. Okay.